یہ جو صورت ہے 14ویں پارے کی بنی اسرائیل آیت کا نام یہ معراج ہونے کے بعد کی ہے. معراج کے پہلے نہیں آئی. اس کے بعد کیونکہ معراج جو ہوتی ہے وہ مختصر اسرا میں لیلت مختصر چھوٹے سے رات کے حصے میں میہانی کے گھر پہ کوئی مجھے دوسرا تھا ہی نہیں جو آیت آتی اترتی کسی کو بتاتے نبی. صحیح بات ہے بالکل. تو آیت بعد میں معراج پہلے. پہلے سورت آئی آیت آئی سمجھا لو آیت آئی اللہ نے فرمایا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ امت کو دی. آیت آئی پھر سمجھایا. قُلْ أَعُوذُ بِالْفَلَقِ آیت آئی پھر سمجھایا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ نے دی پھر سمجھایا. یہاں پر اللہ معراج کرا لیتا ہے آیت بعد میں دیتا ہے. ارے آپ لوگ کو سمجھا رہی معراج کے واقعے آپ نے بہت سنے ہر عالم سے سنتا رہا اور بڑے بڑے سنتے ہیں. میرا تو کچھ بھی نہیں آتا. بڑے بڑے بنانے والے عالم بہت سارے موجز پڑھے. میں آج کو سمجھانا چاہتا ہوں جو سمجھانا ہے وہ کہ یہ کیا ہے. معراج کی جو رات ہے وہ واحد جلسہ مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ جلسہ مصطفیٰ ہے. شان مصطفیٰ ہے. شان مصطفیٰ جلسہ مصطفیٰ عشق اللہ ہے. آج تم ایسا دو علم لے کے چلو ایک شرح قرآن اور ایک علم و شرح تینوں چیز. کوئی صوفی نے اپنے گھر سے نہیں جوڑا یہ سب چیزیں. صوفی بھی قرآن سے چلتا ہے بھائی. صوفی کا کوئی قرآن الگ نہیں ہے. کسی پیر صاحب کا قرآن الگ نہیں ہے. کسی مولوی کا قرآن الگ ہے. قرآن ایک ہی ہے. بس طریقت الگ ہے اس کو سمجھنے کی اس کو سمجھانے کی اور اپنانے کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے تو فرمایا لوگوں کو سبحانک الذی لے گئی وہ پاک ذات. یہ لوگوں لے گئی وہ پاک ذات مجھ کو مسجد حرم میں گئی لے کر وہاں سے مجھ کو مسجد اقصی لے گئی پھر وہاں سے میرے کو عرش اعظم تک ادنا تک لے کر گئی. یا رسول اللہ آپ کو معراج ہو گئی. ہاں مجھ کو معراج ہو. کس کی ہوئی؟ اللہ افضل کو میں دیکھ کر آ رہا ہوں. دیکھ کے آنے کے بعد سمجھایا. دیکھ کے آنے کے بعد سبحانک الذی اسری بعبدہ. یہاں پہ رکتے اپنے لے گئی. اے محبوب کہہ دے لے گئی وہ ذات پاک ہے وہ ذات اپنے محبوب بندے کو مختصر رات کے حصے میں مسجد حرم مسجد اقصی اور لامقات سے بھی آگے ادنا تک پہنچا دیا. ادنا سے آگے پہنچایا. سبحانک الذی یہ اللہ خود لے گیا. اللہ ساتھ میں تھا میں لے گیا. میرے نبی نے نہیں فرمایا میں گیا. میرے نبی نے صحابہ کو نہیں فرمایا کہ میں گیا مسجد حرم سے مسجد اقصی تک ادنا تک لامکہ تک میں اللہ کو دیکھ کر آیا. رب خود کہتا ہے اے محبوب کہ ان سے میں لے گیا. رب لے گیا. رب لے گیا اپنے نیک بندے کو رات کے مختصر وقت میں مسجد حرم سے اقصی سے لامکہ کوشش ادنا اللہ کے مقام تک جہاں اللہ جانتا ہے اور نبی جانتے ہیں جہاں رکنا تھا رکے. لیکن یہاں اللہ نے خود ذمہ داری نبی پر نہ رکھی. نبی یہ اگر تمہیں کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے کہ نبی کو معراج نہیں ہوئی نبی کو معراج نہ ہوئی
नबी बुराक पर नहीं गए, नबी जिब्रील के साथ नहीं गए, नबी अर्श आजम पे नहीं गए, नबी जन्नत में नहीं गए, नबी आसमानों में जिस्म के साथ ना उड़े। अब महबूब तू बुरा मत लगाना, सही इन्होंने जो ना बोला ये ना तेरे बोलने पे काम हुआ, सही बात है। तेरे बोलने पे तब होता जब तू बोलता। ये तो मैंने कहा कि मैं ले गया, जब मैं लेकर गया मेरे नबी को तब तू उसको मान ले ईमान वाले या ना मान ईमान वाले, सही मान आलिम उलमा या किताब वाले मान या ना मान, लेकर तो रब गया। मेरे नबी ने कहा ही नहीं कि मैं गया हूं, सही बात है। नबी ने कहा सुभान अकल ले गई वो पाक जात। अब कौन सी वो पाक जात? अब कोई आलिम ने फरमाया बुराक पाक जात, अबे बुराक मखलूक है, नबी से अफजल नहीं हो सकती, नबी से अफजल बुराक नहीं हो सकती, जिब्रील नबी से अफजल नहीं हो सकते। तो पाक जात में भी आते हैं अकले सलीम वापर, तो नबी खड़े हैं, तो नबी को फरमाया ए नबी कह दो इन लोग से ले गई मुझको, अल्फाज फिरता है, मुझको ले गई नबी ने फरमाया वो पाक जात। कौन सी पाक जात थी जो मुझे ले गई? वो अल्लाह अफजल कौन सा था? अल्लाह अफजल खुद साथ में नबी कौनैन के साथ था, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम तक, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक लेकर गई। अल्लाह मस्जिद हरम तक गया, अल्लाह मस्जिद अक्सा तक गया, हरम में 2 रिकात नमाज किसकी पढ़ू, क्या बोलकर पढ़ू, फर्ज नफिल सुन्नत वाजिबात क्या करूं? नबी ये अल्लाह का घर है, जिब्रील फरमाते ये अल्लाह का घर है, आप यहाँ 2 रिकात नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ना जरूरी नहीं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आए गए हरम के अंदर तो कौन सा बंदा है तवाब बिगड़ गया है? आए गए हरम के अंदर तो 2 रकात नमाज पढ़ने में क्या जाता है? आका मौला है 2 रकात पढ़ता है अपने हिसाब से, पढ़ी मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं, खड़े हो गए, अजान हुई, जिब्रील दी अजान, जिब्रील अजान दी, इकामत जिब्रील पढ़ी, और इमामत नबी कौन है? सब नबी खड़े, कौन? इब्राहिम भी, इस्माइल भी, 1,24,000 पैगंबर रसूल नबी मिक्स मस्जिद अक्सा में। कितने? 1,24,000 पैगंबर, तमाम वो पैगंबर जो दुनिया से रुखसत हो चुके, दुनिया से रुखसत हो चुके, बरज़ख की दुनिया से बाहर आए, बरज़ख की दुनिया से बाहर आए, आसमानों पे से तो नीचे आए, चौथे पे था वो भी नीचे आया, सातवें पे कौन है? तो बोले इब्राहिम नहीं आए। चौथे पे कौन है? बोले ईसा, वो भी आए। जो जमीन के अंदर थे, जो जमीन में थे नबी रसूल बनकर, वो भी मस्जिद अक्सा में, आसमान में नबी थे वो भी मस्जिद अक्सा के अंदर, 1,24,000 पैगंबर मस्जिद अक्सा में। और आज की पोजीशन के अंदर मस्जिद अक्सा पहले करते बड़ी है, 1,24,000 इंसान अंदर नहीं आ सकते। सही बात, 1,24,000 इंसान की सफे नहीं है। सही बिल्कुल सही, मस्जिद हरम से छोटी है, मस्जिद नबी से छोटी, सही सब पब्लिक अंदर आ सकती नहीं। 1,24,000 पैगंबर, खाली भी तो पैगंबर की बात है मस्जिद अक्सा में।
मस्जिद अक्सा में। मान लो चलो आ भी गए, आ गए, और क्यों ना आते, क्यों ना आते, आ गए, क्योंकि अल्लाह साथ है। आए मस्जिद अक्सा, एक लाच हो जाए पिंगर पर, सफे बांधी। अब उनके साथ खाली पैगंबरी थे नहीं, उन पैगंबरों के साथ दुनिया के ईमान रखने वाले जीन भी, सही बिल्कुल दुनिया में घूमने वाले फरिश्ते भी, सही जिब्रील भी, हर कोई। अजान हो गई, इमामत पढ़ ली, सफे बंध गई, इमामत करो। अब इमामत नबी कौनैन के हाथ में आई, इमामत नबी कौनैन के हाथ में आई, आप इमामत करिए। ये तो मेरा बाप है इब्राहिम, नहीं पढ़ना आप, ये तो इस्माइल है, अरे काबा बना आप, हर कोई की उंगली आप, हर कोई नबी चाहता था आप। क्यों, क्यों नबी कौनैन की इमामत में तमाम अंबिया मुतबली क्या बन गए, मुतबली बन गए। एक नबी जब इबादत करता है तो अल्लाह के खातिर, और वाहिद वो अल्लाह से रफ्तार बात करता है। बिल्कुल सही। नबी रसूल अल्लाह से वही से बात करता है, कभी कलाम से बात करता है, कभी रूबरू बात करता है। आगे बना रहे यहाँ पे तमाम नबी का जो मिशन था वो सामने ला रहा हूं। तुम्हें भेजूंगा, सब नबियों को भेजूंगा, और तुम जाकर कहना कि मोहम्मद मुस्तफा मौला कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। कलमा हमने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबी ने पढ़ा, आदम से लेकर ईसा तक। अब उम्मती किसके बन गए, जिसका जो कलमा पढ़ता है बंदा उसका उम्मती हो जाता है। तो आदम अलैहिस्सलाम उम्मत मुस्तफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी के दादा लगते सिलसिले के अंदर कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उम्मत मुस्तफा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उम्मत मुस्तफा। अब उम्मत मुस्तफा हो गए, क्या हो गए, उम्मत मुस्तफा हो गए। अब उम्मत मुस्तफा होने के बाद यहाँ पे इल्म हुस्ना से इरफान से बात करता हूं कि अल्लाह क्या चाहता, कि वहां पर अल्लाह ने मस्जिद अक्सा में बता दिया कि यकीनन ए रसूल पैगंबरो, मैंने तुम्हें भेजा था इस इमाम के लिए, तुमने कलमा पढ़ लिया, तुम्हारी दुआएं मैंने कबूल कर ली, आओ आज इसको तको भी और इसके मुतबली भी बन जाओ। उम्मती तो हुई, तमाम नबी होके नबी का उम्मती, रसूल होकर रसूल का उम्मती, पैगंबर होकर पैगंबर का उम्मती। कौन, अंबिया मुस्लिम, इमामुल अंबिया, इमामुल मोमिनान। अंबिया मेरा नबी इमामत करता तमाम मखलूक के पीछे, जो जो ईमान लेके आने वाली थी, और जितने भी इनाम वाले थे, जिनको बजट की दुनिया में से उठने का मौका अल्लाह ने दिया, चाहे फिर मूसा अलैहिस्सलाम हो कब्र में से उठने वाले, चाहे मूसा के साथी हो, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो इब्राहिम के साथी हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो ईसा के साथी हो, जितने भी वलीउल्लाह अल्लाह ने उनको जिंदा रखा है। अल्लाह जिंदा है, वो जिंदा जितने भी थे तमाम के तमाम सरकार के पीछे। कितनी लोग कहते हैं मस्जिद अक्सा में आए कैसे, सबकी अंबिया की नमाज कैसे पढ़ाई, आलिम इसमें इतलाफा करता है। कुछ उलमा, कुछ ऐसा आलिम भी पढ़े हैं जो कहते हैं ये सब गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं, मेराज हुई नहीं। हाँ भाई तेरी बात सही है, क्यों, तेरे को अल्लाह ने इल्म दिया, तेरी किताब ने बताया तुझको इतना, और हमको किताब से नहीं मिला है, हमको तो सदका मुस्तफा मिला है। मुझे सदका मुस्तफा नहीं मिला, तुझको सदका पंजतन नहीं मिला, तुझको अल्लाह की तौफीक नहीं मिली है, तुझको किताब से तौफीक है। किताब का इल्म है तेरे पास, और हमारे पास सदके का है, सदका पंजतन। तो सदका पंजतन के अंदर तमाम अंबिया के पीछे अंबिया ने नमाज बांधी, अंबिया के पीछे अंबिया, रसूल के पीछे रसूल, नबी के पीछे नबी। बिल्कुल सही। अरे
अल्लाह साथ, सुभान अल्लाह वाह भाई अल्लाह साथ। साथ। अब अल्लाह साथ है, सरकार नमाज पढ़ाने की तैयारी में तमाम मखलूक पीछे नमाज पढ़ रही है, सही ये इत्तलाफ खड़ा होता है। इतने सारे कैसे, इतने सारे कैसे, कैसे, बस ये कैसे हुआ, यही अल्फाज आलिम तुझे कुफ्फार कर देगा। सही आलिम मस्जिद अक्सा में ईदों की नमाज कैसे हुई, 1,54 पैगंबर मस्जिद नबी में मस्जिद अक्सा में आए कैसे, उसके बाद दूसरी मखलूकात थी और वो सब आई कैसे, जिन और बशर थे वो सब आए कैसे, कैसे का अल्फाज ना पूछ। सुभान अल्लाह जी, अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ले गया, सही अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ले गया। जब अल्लाह साथ है नबी के, अल्लाह साथ है और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो मस्जिद अक्सा के अंदर कमोबेश मखलूक को नाक दिया, जीन फरिश्ते और इंसान को और अंबिया और रसूलों को भर दिया। तो बोलता मस्जिद इतनी सी कैसे, अरे कैसे नहीं भाई, बराबर सोच, एक खसखस के अंदर दुनिया बना सकता है, एक खसखस के अंदर पूरी एक कौम है, दुनिया खड़ी है, उसके अंदर बंदा आलिम बयान करके बोलता है ये लोगों ईमान लिया मोहम्मद मुस्तफा आ चुके हैं, भूल गया और खसखस को निकल दो, और खसखस में देखता कि दुनिया खड़ी है तो ये तो मस्जिद अक्सा है, ये तो मस्जिद अक्सा है। आलिम भूल जाता है, बस वो मस्जिद अक्सा में से मेरे सरकार नमाज पढ़ा, क्या करते हैं, सरकार नमाज पढ़ाई, चले किसकी रफ्तार से जा रहे हैं, किसकी रफ्तार से जा रहे, बुराक की रफ्तार, जिब्रील की रफ्तार, रफ की रफ्तार, 3 चीजों पे सवार हुआ। और रफ्तार किसकी थी, रफ बुराक और जिब्रील, ये तीनों पे अपना सवार हुआ है। ये रफ्तार उनकी है, नबी की नहीं है। किसकी रफ्तार नहीं है, नबी की रफ्तार, ये नबी की रफ्तार नहीं है, एक मखलूक की रफ्तार है। उस मखलूक को पूछे, मखलूक ये बुराक बता तेरी रफ्तार कितनी, तो फरमाता है मेरी जहां तक निगाह पड़ी वो पग मेरा, एक पगला 500 बरस की राह, 500 बरस की राह, सही 500 बरस के अंदर ये देखा पाँव एक ही, 500 बरस की राह, कई जगह 70 बरस की राह, तो जहां उसकी निगाह पड़ी उसने पैर रखा, जहां निगाह पड़ी पैर रखा, किसने, बुराक ने। ये बुराक का तकना था, नबी का जाना नहीं था। और जिब्राइल तुम, मैं भी 500 बरस तक, 500 फीट बोलो, 500 मीटर बोलो, 500 वार बोलो, इतना बड़ा एक पगला समझाने के लिए तुम्हारे, किनका, जिब्रील का, बुराक का, रफ का, ये इनके उड़ने की दायरा था, इनके पांव रखने का मकाम था, कितना लंबा पांव उनका। मेरे सरकार इनके ऊपर आए, बैठे, इनको अफजल बना दिया, बुराक पे बैठे बुराक अफजल, रफ पे बैठे रफ अफजल, जिब्रील पे बैठे जिब्राइल अफजल। अब जिब्रील लामका पे खड़ा, देखो ये बयान पढ़े बहुत सारा कर चुके हैं, खाली समझाना चाहता हूं। लामका पे खड़ा, जिब्रील को नबी ने फरमाया, ए साहबाओ, मैंने जिब्रील को कहा ए जिब्रील चले, तो फरमाया या रसूल अल्लाह आगे मैं नहीं जा सकता, आगे मैं नहीं जा सकता, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। तो सरकार ने झटका लिया, एक पैर का झटका लिया, तो एक पैर जिब्रील का बढ़ा, तो वापस वो पैर बढ़ते जिब्रील ने पीछे ले लिया, बोले सरकार आगे नहीं जा सकता। जिब्रील क्यों नहीं, अगर पैर दूसरा रख देता या आगे और चले जाता जल के खाक हो जाऊंगा, यहाँ सिर्फ लामका कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं है, जिब्रील ने भी नहीं देखा, जिब्रील नहीं देखा, नबियों ने नहीं देखा, कोई मखलूक ने भी ना देखा, उसको कहते हैं लामका। सुभान अल्लाह, क्या बोलते हैं, लामका, किसी मखलूक ने भी ना देखा कि अंदर है क्या, वहां पर खड़ा किया। अब यहाँ रोक के एक चीज बोलूं मैं, जिब्रील आया नहीं अंदर,
नहीं आया। मेरा ईमान कहता अगर जिब्रील भी साथ में गया होता ना, मेरा नबी है, रहमतुल आलमीन, वाह वाह वाह। अंता फीहिम, जिब्रील गया नहीं। अगर गया होता ना तो खुश नसीब हो जाता जिब्रील कि उससे मौका मिल जाता तकने का मौका मिल जाता, क्योंकि कनेक्शन मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ। खैर बहरहाल उसकी जगह से ठीक है, इल्म हुस्ना के साथ बोला चलूंगा मैं। सरकार आगे जाते हैं, कहाँ गए? आगे गए। अल्लाह ने फरमाया उधनी मिन्नी, चले आओ। रहमत का एक पर्दा उठा, रहमत का पर्दा उठा, रहमत दे दी। आलमीन का पर्दा उठा, आलमीन दे दी। सफे का पर्दा उठा, सफा दे दी। अकबर अंबिया का पर्दा उठा, नबी चलते रहे, मकाम पे नबी चलते रहे। अल्लाह एक एक पर्दा अपने नाम की सिफत उनको देता रहा। बिल मोमिनन रऊफुर रहीम, क्या लिखा कुरान में? बिल मोमिनन रऊफुर रहीम। मेरे नबी को मोमिन बनाया और रऊफ और रहीम बनाया। इस जो मेरी अता है वही अता इसकी, जो मेरी अता है वो इसकी अता है, जो इसकी सफा है वो मेरी सफा है। सब कुछ और सरकार को देते रहे। पर्दे हटते गए, क्या हटते गए? 30,000 इल्म आलिम की किताब से। किसकी? किसकी? आलिम की किताब से 30,000 इल्म दिया सरकार को। 30,000 इल्म सरकार को दिया। मैंने बोला नहीं रे, गलत कर गया। क्या? 30,000 इल्म दिया, गलत। 30,000 तो इल्म दिया, अरे 30,000 नहीं, 30,001। कितने? 30,001। 30,000 जो इल्म है दिए गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ने 10,000 जाहिर कर दो, 10,000 बातिल में रखो, और 10,000 कोई नहीं जानता, अल्लाह उसका रसूल जानता है। 30,000 रहमत और बरकत के साथ इल्म हाजिर हुआ, जिसमें नमाज भी आ गई, ज़कात भी वगैरह वगैरह, जन्नत वगैरह वगैरह सब आ गए। लेकिन 30,000, मैं कहता हूँ 30,001। क्या? इल्म की दुनिया में 30,000 दिए नबी को, तो सहाबा भी आशिक है भाई। या रसूल अल्लाह मेरा देख ले। क्या अल्लाह को देखा? ईमान ने देखा, 1 लाख। नबी को फरमा लिया सरकार 1 लाख देख लिया। क्या हम नहीं देख सकते? तिजारत करी साथ में, खंदक खोदी साथ में, मक्का छोड़ा साथ में, मदीना से गए साथ में, मदीना में आए साथ में, जंग में गए साथ में, हर जगह साहबा साथ में, मदीना के गुम्मत में लेटे तो साथ में, मदीना के गुम्मत में लेटे तो साहबा साथ में। अरे कब्र में सब एक उठते हैं, मेरा नबी कब्र में उठता साहबा के साथ में, कब्र में से उठेगा कभी साथ में, साथ ही साथ में सरकार सब साथ में है। 30,000 इल्म में सब आ गया। कब जन्नत में कब कौन कैसे उठने वाला है? अल्लाह कैसा है? 30,000 इल्म, 30,001। वो 30,000 तो इल्म थे, वो एक क्या है? वो एक ये है कि रब ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। 30,001 जो एक है वो अनेक है। वो एक अल्लाह ने अपनी तस्वीर रच दी, अपना नूर बना दिया, अपना मजहर बना दिया। क्या बना दिया? मजहर बना दिया कि मुझे मखलूक नहीं तक सकती। अगर मैं नीचे जाता हूं तो मालिकत नहीं समझ पाएगी। मेरा मजहर बनाकर, मेरी नूरी तस्वीर बनाकर मोहम्मद को भेजा, और मोहम्मद मुस्तफा मजहर बनकर दुनिया को बताया रब ऐसा होता है।
رب ایسا ہوتا ہے اور رب کے سامنے جھکایا ایسے جاتا ہے سر. کیسے؟ جب نماز نہ تھی, جب میں نے مسجد حرم میں پڑھی, جب مسجد نماز تم پر نہ آئی, جب مسجد اقصی میں پڑھی, جب مسجد نماز تم پر فرض نہ ہوئی, جب میں نے مسجد کعبہ کوثر آسمانوں میں پڑھی, 6 رکعت نماز میں پڑھ کر گیا. جب نماز فرض نہ تھی امت مصطفیٰ پہ فرض نہ تھی, نبی پر بھی آئی نہ تھی, اور ابھی بھی میں تو کہتا نبی پہ فرض نہیں ہے. پڑھ لے کے نہیں مانتا, ہمارے لیے پڑھتے بات کی بات ہے. نماز نہ تھی, سرکار نے نمازیں پڑھی, سرکار نے نمازیں پڑھی, ان کو علم ہے. کیا ہے؟ نبی پاس علم ہے, سے 30,000 علم دیے. عالم بولا 30,000 علم دیے, اس میں قیامت تک کا فیصلہ کر دیا کہ یہ ہونے والا ہے. پر 30,000 نہیں میرے بھائی, 30,000 ایک ہے. 30,000 ایک, وہ ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے جو 30,000 بنا سکتا ہے. وہ ایک ہٹ جائے نا تو 30,000 کام میں نہ آئے. جو بھی کچھ ہے وہ ایک ہے. وہ ایک سے اس نے کیا ثابت کیا اللہ نے کہ یہ میرا محمد نبی بنے, رسول بنے, پیغمبر بنے, کتابیں آئی, امتیں بنی, عبادتیں بنی, ہر چیز بنی. میری دیدار کسی کو نصیب نہیں. بالکل دوں گا, دکھاؤں گا, سب کو دکھاؤں گا. اللہ اپنا چہرہ دکھائے گا. والمومنات والمومنین, تمام مومنوں کو, اور تو مومن, آدمی مومن کو اللہ اپنا چہرہ دکھائے گا. وعدہ کر لیا یہاں پہ, اللہ نے وعدہ کرا دکھاؤں گا. عیسیٰ دکھاؤں گا, موسیٰ دکھاؤں گا, ادریس دکھاؤں گا, عیسیٰ دکھاؤں گا, عمر دکھاؤں گا, علی دکھاؤں گا, گوشت دکھاؤں گا, خواجہ دکھاؤں گا. رب تجھ کو چہرہ دکھائے گا. رب تجھ کو چہرہ دکھائے گا. رب تجھ کو دکھائی دے گا. چہرہ ہے یا نہیں؟ تو نبی پوچھتے ہیں نبی سے کیا فرماتے ہیں, تو نبی نے فرمایا اللہ مجھ کو معراج کی رات خوبصورت بن کر ملا. خوبصورت ملا اور میں اس کو دیکھا خوبصورت بن کر تھا. اللہ کا رسول فرماتا خوبصورت ہے, ان کے اللہ خوبصورت ہے. اللہ خوبصورت ہے. جس طرح اللہ کے تعالیٰ نے تعریف کی وَالضُّحَىٰ لَيْلِ إِذَا سَجَدَ, اے محبوب تیرے چہرے انور کی قسم, جو زلفیں لہراتی کالی اور جب آتی ہے اس کی قسم, تیرا کیا رنگ بنائے اور چاند پھیکا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا اس آیت کو. تو یہاں نبی نے فرمایا لوگوں میرے اللہ کو میں خوبصورت دیکھ کر آ رہے ہوں, خوبصورت حال میں دیکھ کر آ رہے ہوں. یہاں نبی کی تعریف اللہ کرتا ہے, اللہ کی تعریف نبی کرتا ہے. وہاں خوبصورت لیلن زلفوں کے ساتھ میں ہے, یہاں پہ فرماتا خوبصورت تصویر دیکھ کر آ رہا ہوں, اور نوری چہرے, نوری میں, اور قیامت میں ہر مومن کو دکھائی دیں گے. ہر مومن کو دکھائی دے گا. جنت میں جو بھی جائے گا اس کو اس کی سلامتی اور میں دکھائی دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے میں دکھائی دوں گا, میں دکھائی دوں گا. قیامت میں چاہے نبی ہو, رسول ہو, پیغمبر ہو, خواجہ ہو, غوث ہو, قطب ہو, ابدال ہو, صحابی ہو, تابع تابعین ہو, نبی ہو, سب کو جنت میں دکھے گا. جنت میں دکھے گا. جو سوچو میں کیا بول رہا ہوں, جنت میں جاؤ گے تو اللہ دکھے گا. جنت میں جاؤ گے تو اللہ دکھے گا. نبی کریم فرماتے ہیں جنت کے بھی اوپر مجھے لے گیا اللہ, میں وہاں ملا. تمام نبی رسول جنت میں جائیں گے تب دیکھیں گے, اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج جس کو بولتے ہیں, جو دنیا دیکھے وہ معراج نہیں,
दूसरी मखलूक जो देख ले वो मेरा नहीं, 30 इल्म हासिल कर ले वो मेरा नहीं, 30 के ऊपर जो एक है वो हासिल हो जाए वो नबी रसूल के कि सब जन्नत में अल्लाह तेरा दीदार करेंगे, जन्नत में तेरी सूरत देखेंगे, जन्नत में तेरा नूर देखेंगे, जन्नत में तेरी सलामती देखेंगे, तू सलाम भी करेगा, जन्नत में जाने के बाद सलाम करेगा। मैं जन्नत में भी नहीं, अभी रूह भी कब्ज ना हुई, अभी उम्मत मुस्तफा के साथ हूँ, मैं अल्लाह तेरे दीदार में आया, अल्लाह के दीदार भी हुए और अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या फरमा दिया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर और रहमत और बरकत हो। क्या हो? रहमत हो और बरकत हो। कौन बोल रहा? रब। और रब कभी झूठा नहीं बोलता। रब तो अल्लाह की सलामती फेस टू फेस बात में और कहाँ मुलाकात हुई? ला मक्का से आगे अदना तक आगे, उस जगह पे सरकार दो आलम सल्लम के पेरे अनवर गए, सरकार के पेरे अनवर नालेन के साथ चप्पल के साथ वहां गए जहां पर पूरी कायनात की तकदीर लिखी जाती है। पूरी कायनात की लोहे कलम लिखती है, कभी ईसा की तकदीर, कभी मूसा की तकदीर, कभी आदम की तकदीर, तो कभी गोश की तकदीर, तो कभी अली की तकदीर, कभी उमर की तकदीर, तो कभी खाजा की तकदीर। पूरी कायनात का डिटेल जहाँ लिखा था वो भी मेरे सरकार के पैर के नीचे, सब मेरे सरकार के पैर के नीचे, उससे भी ऊपर मेरा नबी। क्या है जाना मेरे सरकार का? अरे देख मेरे भाई, मेरे सरकार की खाली आमद देख, उतनी मिन्नी बेधड़क चले आओ, तुम्हारे रब ने बुलाया, तुम्हारा रब साथ में, तुम्हारा रब ने हुक्म दिया है, आओ चले आओ, सब कुछ तुम्हारा है। मेरा नबी कैसा आया? तमाम अकले सलीम, काम बनना बंद कर दे, है नहीं अल्फाज मेरे पास, वरना मैं क्या नहीं क्या कह देता। लेकिन नबी मखलूक है, मखलूक के सरदार है, वो रब नहीं है, रब नहीं है, रब से जुदा भी नहीं है। मेरा नबी करीम कहाँ कदम अनवर आपके पैर नालेन के साथ में लामका तक गए, और लामका से धर गए तो लामका लोहे कलम, लोहे कलम लामका से नीचे, और लोहे कलम पे कुरान लिखा हुआ, लोहे कलम ने कुरान लिखा हुआ, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, तमाम मखलूक की तकदीर लिखी हुई, और अंबिया रसूलों के नाम भी लिखे हुए, उनसे भी अकदर मेरा मोहम्मद है, उससे भी अकदर मेरा नबी गया। और जब मेरा नबी जाता है मेरे रब के सामने खड़े हो जाता है तो ताजीम और इज्जत के साथ खड़े हो जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह में हाजिर हूँ, तेरे हुक्म से मैं आ गया, तूने मुझसे मिलने का वादा किया था, अल्लाह तुम मिलना चाहता है, मैं आ गया तुझसे मिलने के लिए, क्या लाए हो? समझ में नहीं आती है बात। नबी क्या लाए हो? रब पूछता है नबी के क्या लाए हो? मैं वो लाया हूं मौला जो तेरे पास नहीं। क्या क्या? जो बोला तेरे पास नहीं है, अल्लाह जो तेरे पास नहीं है वो मैं लेकर आया हूँ। 30,001 30,000 इल्म अल्लाह ने दिए, अभी एक को तो समझ, 30,000 फिरा, वो एक क्या था? अल्लाह देख मैं तेरे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, क्या लाया हूँ? मैं अब्द बनकर इल्तिजा लाया हूँ। क्या लाया हूँ? इल्तिजा, अब्द बनकर इल्तिजा लाया हूँ, क्योंकि अल्लाह कभी इल्तिजा नहीं करता, ना वो इल्तिजा के लायक है। अब्द है जो जितने भी रब के सामने इल्तिजा के लायक है। फरियाद अल्लाह के सामने करी जाती है, अल्लाह किसी से फरियाद नहीं करता, वो तो फुन फाया खून हो जाता है। तो वहां इल्तिजा लेकर गए, वो इल्तिजा ली, फिर पूछा ए महबूब
उतनी मिन्नी सब कुछ आज तेरा अस्सलाम अलैका आइयो नबी और रहमतुल्लाह व बरकातहू सही जवाब क्या होना था सुभान सलाम कराना रे सही सलाम किया ना अल्लाह को सलाम किया अब जवाब ये नहीं होता है कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू ये नहीं हो सकता क्यों क्योंकि अल्लाह है अल्लाह को तो कोई अल्लाह है ही नहीं अल्लाह को तो कोई अल्लाह है ही नहीं कि नबी बोल दे तुझ पर सलामती और रहमत हो बरकत हो अल्लाह ने सलाम करा है अब अल्लाह को सलाम करेगा कौन तो नबी ने फरमाया मौला तूने तेरे हबीब को सलामती रहमत और बरकत दी हाँ मैं चाहता हूँ कि और अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी रहमतुल्लाहि बरकातहू तरफ को फरमाया अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह अस्सलामु अलैना अला बैतिल्लाहि सालिहीन अस्सलामु अलैना अला बैतिल्लाहि सालिहीन ए मौला जिस तरह तूने मुझ पर सलामती रहमत और बरकत भेजी है इसी तरह वल मोमिनात वल मोमिन पर वल मोमिनात तमाम मोमिन बंदों पर तेरी रहमत और तेरी सलामती हो क्या मांगी तेरी सलामती हो बरकत नहीं है यहाँ अल्लाह ने नबी पे रहमत और बरकत दी है और यहाँ पे नबी ने सलामती मांगी है फर्क है क्या है सलामती मांगी है उन मोमिन बंदों के लिए मौला सलामती कर दे ए महबूब आज तू मांग मिला दिया आगे बढ़े और महबूब क्या मांगता है तो अल्लाह ने फरमाया ए महबूब जा तेरी उम्मत को बिगर हिसाब किताब आधी बकसने तैयार हो सुभान कितनी आदि आधी तेरी उम्मत को बकसने के लिए मैं तैयार हूं नहीं तो फिर सफे की डोर तुझे देने तैयार सुभान दो ऑप्शन रखे सही समझना यहाँ क्या बोलने वाला हूं इंशाल्लाह अल्लाह ने फरमाया आधी उम्मत है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगर हिसाब किताब तुम्हारी बकस दूंगा नबी ने फरमाया अल्लाह और नहीं तो तुम्हें सफावत की डोर हाथ में देता हूं तुम्हें सफावत की डोर हाथ में देता हूं आप चाहो उसकी तो नबी ने फरमाया मौला मेरी उम्मत को आधी सफावत आधी उम्मत को बख्शना मत मेरी उम्मत को आधी मत बकस मत दे सफावत की डोर मेरे हाथ में दे क्या दे दे सफावत की डोर मेरे हाथ में दे दे तो या अल्लाह ने फरमाया बोला सोफी का यूती का फतरदा ये आयत वहीं दे दी आसमान कहा दी मेराज में दे दी वो सोफी का यूती का फतरदा ए महबूब जा वादा करता हूँ सफे की डोर तेरे हाथ में दे दी है मकाम महमूदा तू बैठे रहना तू तकते रहेगा मैं तुझे तकते रहूंगा और जब तक तू राजी ना होगा तो जब तक राजी ना होगा तेरी उम्मत को मैं बकसता रहूंगा और नबी ने फरमाया ए साहबा इकरामो सुनो जब अल्लाह ने मुझको कहा नबी तेरी उम्मत को आधी बकस दूं तो मैंने नहीं ली मैंने सफावत ले ली क्या ले ली सफावत ले ली क्यों पूछो इसलिए कि आधी उम्मत अल्लाह के आधी उम्मत अल्लाह के हुक्म से सफा हो जाती मैं एक उम्मती मुझको देखकर बोलता या रसूल अल्लाह मैं बाकी हूँ तो उस वक्त ये नबी मायूसी हो जाता सहन नहीं कर सकता उसके उम्मत को जलता नहीं देख सकता उसके उम्मत को परेशानी में हाथ में देख सकता उसके उम्मत को जन्नत में नहीं देख सकता तो अल्लाह से मैंने फरमाया मौला आधी उम्मत को मेरी ना पकड़ सफावत की डोर मेरे हाथ में दे दे अब सफावत की डोर जैसे मेरे हाथ में दी और सोफी यूती का फतर था जब रब ने ये फरमाया और वो डोर मेरे हाथ में आ गई तो साहबा सुनो अब जन्नत के अंदर एक भी मेरा उम्मती रहना नहीं दूंगा जब तक मकाम महमूदा से मैं हलूंगा नहीं जब तक नबी से अल्लाह से मैं राजी ना होऊंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में से बाहर नहीं निकल जाता दरोगा यूं ना कह दे कि मारने के लिए कुछ बचा ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा की
सफावत उम्मत मुस्तफा की नबी कौनैन के हाथ में है। किसके हाथ में है? नबी कौनैन के हाथ में सफावत है। दे दी क्या? दे दी। अब यहाँ से मैं इल्म हुस्ना पढ़ता हूँ और मेरा विजदान है, मेरा इरफान है कि यहाँ से फिर एक चीज मुझे पता चलती है मेरी अक्ल से कि अल्लाह ने पहले के नबियों को रसूल को एग्रीमेंट कुछ नहीं किया और उनकी उम्मत के साथ भी कोई एग्रीमेंट नहीं किया। मेरे नबी के साथ एग्रीमेंट कितना जबरदस्त किया कि सफीना अकबर बनाया और शाह साहब ने बताया महबूब लोग पहचाने कि मेरा हबीब कैसा है, लोग पहचाने कि रब को तकने वाला कैसा है, रब को तकने वाला कैसा, रब को तकने वाला चेहरा कैसा है। तो उस चेहरे को मैंने वाहिद ऐसा ही जिंदा रखा और ऐसा ही रखूंगा कयामत तक। जब से ये चेहरा बनाया, जब से ये चेहरा बनाया उस वक्त से मैं ऐसा ही रखूंगा। तेरे जिस्म को मिट्टी खाना हराम और तेरे चेहरे को मैंने ऐसा बनाया जैसे कि तेरे साहबा तकते हैं। पहले के नबियों को हुक्म नहीं था कि उनकी उम्मत मर जाए तो कब्र में गए, न ईसा कब्र में गए किसी उम्मती के, न इब्राहिम किसी उम्मत में गया, न ईसा गया, न मूसा, न लूत, न सुबैत, न याकूब, न यूनुस। कोई अपनी उम्मत की कब्र के अंदर उम्मती की कब्र में ना गया। ये मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफीना अकबर है, सफीना अकबर है। ये साहबा जिस तरह तुम मुझे तकते हो, तुम मुझे तकते हो, हाँ, तो ये ना सोचता खाली तुम्हें मौका मिला है, तुम्हें तो जाहिरन मौका मिला मेरी सोबत में बैठने का, मुझसे इल्म हासिल करने का। वो उम्मत होगी जो मुझे देखा ना होगा, मुझसे मोहब्बत करेगी, लेकिन जब बरज़ख की दुनिया में आएगी तो सबसे पहला चेहरा मेरा ही देखेगा। जिस तरह दुनिया के अंदर अली ने करा, दुनिया में अली ने करा, माँ का बाप का चेहरा ना देखा, बहन भाई का चेहरा ना देखा, उसने मेरा चेहरा देखा। मेरी उम्मत कब्र में जाएगी तो पहले मेरा चेहरा देखा। अल्लाह के घर में आँख खुलती है अली की नहीं खुलती, माँ के गोद में नहीं खुलती, नबी का चेहरा देखते खुलती है। इस तरह उम्मत मुस्तफा का चेहरा क़यामत के दिन तक और कब्र के अंदर सरकार होंगे और उम्मत की पहचान। ये मेरा आका मौला है, सफीना अकबर है। ए महबूब, जिस दिन से मैंने बोला सोफी यूती का फतरदा, जिस दिन से मैंने तुम्हें सफाट की दौड़ दे दी है उस दिन से मैंने इनसे अमल इल्म के बारे में पूछना बंद कर दिया। किसके बारे में? इल्म अमल के बारे में पूछना बंद कर दिया। नमाज का नहीं पूछता, रोजे का नहीं पूछता, जकात का नहीं पूछता, कुर्बानी का नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता, हराम हलाल नहीं पूछता, हराम हलाल नहीं पूछा, नमाज बेनमाज नहीं पूछी, कुर्बानी हज उम्रा नहीं पूछा, डायरेक्ट कब्र में आते पूछा मोहम्मद कैसे है, मोहम्मद सल्लल्लाहु के बारे में क्या जानता है। यहाँ पास हो गया, रब ने पास किया, बोला सोफे का यूती का फतरदा, ए नबी हमने सफा दे दी, कयामत में नहीं यही दे दी, कयामत में सिर्फ जलसा होगा, देखेंगे लोग मकाम महमूदा पे बैठा हुआ, तू बैठा रहेगा, मैं तुझे तकूंगा, तू मुझे तकते रहना, मैं तुझे तकूंगा, तू मुझे तकते रहना, मैं तेरा मुखड़ा देखूंगा बद्दुआ वाला, तू मुस्कुरा बैठेगा, कयामत के दिन में तुझे इतना कयामत के दिन भी इतना देगा और कब्र के अंदर कितना देगा। अपनी मोरी रब ने हटा ली, अपनी मोहर हटा ली और चेहरा मुस्तफा ला दिया। अब इसको तक ले, इसको पहचान ले, मोहम्मद मुस्तफा है, तेरा आका मौला है, तो ले थपकी लगाता सोजा कयामत के दिन बना। अब बात है अमल नामे की, बात आती है अमल नामा दूंगा, नबी ने फरमाया मिलेगा, और अमल नामे में भी तू देख क्या है, अमल नामे में भी देख तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जो
हुब्बे अली लिखा होगा, मोमिन के अमल नामे पे हुब्बे अली लिखा होगा। भाई किताब तो सबकी अपने हाथ में दी है, सीधे हाथ में मिलेगी मोमिनों को इंशाल्लाह, तो उस पर हुब्बे अली लिखा होगा। तो ये क्या है? ये पंजतन है। एक पंजतन कौसर पे, एक पंजतन कौसर पे, एक पंजतन अमल नामों पे, एक पंजतन कुरान के साथ नूर पे। कौसर पे देख तो अली खड़ा है, अमल नामे पे देख तो अली खड़ा है, कुरान के साथ देख तो अली खड़ा है, और मकाम महमूद में देख तो अली का आका खड़ा है। हर जगह सफिया उम्मत मुस्तफा सफावत होगी। तो टली मेराज की जो रात नमाज का तोहफा है, अल्लाह के दीदार है। वाहिद अल्लाह के दीदार किए भी नबी ने उम्मत मुस्तफा की फरियाद पहुंचाई। इल्तिजा लाया हूँ। क्या अल्लाह नहीं जानता था? कुल्ले शैन करीम, सब जानने वाला, सबके दिलों के भेद जानने वाला। फिर भी रब पूछता है नबी से क्या लाए हो? क्या जानने के बाद भी एहतराम करा और पूछा क्या लाए हो? तो इसका मतलब तफसीर में जाओ तो अल्लाह खुद नबी की ताज़ीम करता है। ताज़ीमत हुई, क्या हुई? नबी की ताज़ीम की। महबूब जानता हूँ, लेकिन तू इज़हार कर क्या चाहता है? तेरा मजहर मेरा मजहर, मेरा मजहर तू है, तेरा मजहर अहल बैत अली है, तेरा मजहर अली है। अली को तकले नबी को तक लिया, और नबी को तकले खुदा को तक लिया। मजहर है। अच्छा, जन्नत में साहबा, जब मैं जन्नत में गया तो एक महल देखा जो खूबसूरत था। मैंने सोचा जाऊं, मैं रुक गया। प्लेट लगी हुई थी, और प्लेट पे नाम लिखा हुआ था, हजरत उमर फारूक। जन्नत के अंदर घर था, महल था, महल में प्लेट लिखी हुई थी, सरनेम था, ये उमर फारूक का महल है। सरकार ने चाहा जाऊं, सरकार नहीं गया गए। उमर बोलते सरकार मेरा महल तुम देखकर आ गए, ये तो आपके पैर का सदका है, तो अंदर जाकर क्यों नहीं देखा? सोता जाता, लेकिन मेरा उमर जलाली है, मेरा उमर जलाली है। और मैं नहीं चाहता, ये खाली बताने के लिए साहबा को, लेकिन यहाँ पे एक तफसील और करते हुए चलूं। मेरे नबी का हुक्म है, बिगर इजाजत किसी के घर में जाते नहीं है। ये तो आलिम का बोलना है कि सरकार ने फरमाया कि उमर जलाली था, इसके लिए नहीं तू समझा नहीं आलिम, ये तो बात है ही कि उमर जलाली था। लेकिन ये भी तो देख, नबी ने हदीस में लिखा है बिगर इजाजत किसी के घर में जाते नहीं था, और उमर की इतनी ताकत ना थी कि नबी की आवाज सुन सकता था। वो तो मेरे नबी ही थे जो उमर के घर को भी तक गए और बोल भी दिया तेरा घर है, तो यानी उमर फिक्स तेरा जन्नत में घर है। नबी का को फिर भी लोगों को बताने के लिए उमर ने क्या बताया? लोगों को सिखाया, कयामत तक आने वालों को बताया, ये लोगों जन्नत मेरी, जन्नत वाला मेरा, जन्नत दिलाने वाला मेरा, जन्नत का घर मेरा, जन्नत में घर देख के आका मेरा, घर देखा वो मेरा, सफावत मेरी, जन्नत हराम। फिर भी मैं कहता हूँ सुधर जाओ, मान जाओ, ईमान ले आओ। किस पे? हसन की चिट्ठी की जरूरत है, हसन और हुसैन की चिट्ठी की जरूरत है, जरूर नहीं थी। नबी ने बोला फाइनल, नबी ने बोला फाइनल जन्नत में देखा असरा बसरा के अंदर साबी जन्नती, लेकिन फरमाते लोगों सुनो, मेरे को नबी ने तो फरमा दिया जन्नती हूँ, लेकिन जन्नत जिसके हक में है, जो हकदार है, जो सरदार है, उनका एहतराम करना। जिस तरह ये उमर हुसैन अलैहिस्सलाम से दस्तावेज करवा रहा है, मैं तुम दस्तावेज तो नहीं करा सकोगे, बिल्कुल तुम दस्तावेज नहीं करा सकोगे। ये तो उमर था दस्तावेज करा लिया, तुम खाली इनसे मोहब्बत करना दस्तावेजी है, वो दस्तावेजी है, खाली मोहब्बत है। तो नबी से जो उमर का घर देखा, उमर का तो घर देखा, साथ में एक और देखा। क्या देखा?
भाई किसी के पैर की आवाज थी, सुभान अल्लाह, सुभान बिलाल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया, बिलाल इधर आओ, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो, तुम्हारे पैरों की आवाज मुझको मेराज में रात आसमानों पे आ रही थी। या रसूल अल्लाह, में तो कोई अमल नहीं है। नहीं कोई तो अमल है, नबी जानते हैं, फिर भी पूछ रहे बताने के लिए क्या अमल था। फरमाया सरकार, जिस वक्त से आपने फरमाया वजू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ाकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम बोलता है। कौन बोलता है? कौन बोलता है? आलिम बोलता है। मेरे समझ में नहीं आई। मेराज में तो अभी गए हैं, नमाज लाई नहीं है, वो वजू करके नमाज बिलाल पढ़ दिया, कौन सी था? आलिम रुक जा, बिल्कुल। आलिम रुक जा, तेरा चौपड़ी खलास, तेरी किताब खलास, अब गांडों का चलेगा। जो गोश वाले हैं, जो खाजा वाले हैं, जो हसन हुसैन वाले हैं, अरे बराबर तूने इल्म नहीं बांटा। कहता है कि बिलाल वजू करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, उसके लिए पांव चलने की नमाज है। अरे पहले देख, मेराज से आई नहीं है, नमाज मिली नहीं है, बिलाल नमाज कौन सी पढ़ता था? अरे बयान तेरा कहीं और का है, इस और बात की बात है। लेकिन हकीकत में मेराज के अंदर जो नबी ने फरमाया वो बयान कुछ और था। मेराज की रात में बिलाल के साथ बात हुई है, यकीनन हुई है। क्या हुई है? हूर के साथ हुई है, हूर के साथ हुई है। हूर ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्तिजा है, सबको आप अता करते आते हैं, सबको बांटते हैं, कासबून है, काशिम हो आप, मुझे भी अता करे। नबी ने देखा, खूबसूरती देखी, फरमाया वाह भाई अच्छी खूबसूरत है, खैर चल मुहर, मैंने तुझको मेरी उम्मत में से बिलाल दिया। सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत में से मैंने बिलाल दिया। अब उम्मत मुस्तफा को बिलाल, उम्मत मुस्तफा, हूर और बिलाल, वो हूर हाथ निकाले तो सूरज और चांद डूब जाए, उसका उजाला इतना। तो हूर बोलती है, नबी वो बिलाल तो काला है, दांत बार है, काला है, इतना काला। अरे हूर, ये तो नबी की बात है कि मैंने अभी तो बिलाल को पूछा ही नहीं है, ये तो मैंने पसंद करा है तुझको, और तूने मांगा है तो मैंने दिया है। तूने मांगा, मैंने दिया, बिगर पूछे बिलाल के दिया। अगर बिलाल मना तुझे कर दे तो इस तरह मेराज की रात में अल्लाह ताला ने गुद पे गु करी, सब कुछ अता कर दिया, तमाम नेमतें नबी को अता फरमा दी। फिर नबी ने एक अल्फाज फरमाया, अल्लाह अब मैं जाना चाहता हूँ। क्या? मैं जाना चाहता हूँ। अरे भाई, अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, लोग करोड़ों वर्षों तो देखते रह गए, नमाजें पढ़ पढ़ के थक गए, मूसा, ईसा, लूत, सुबैद, याकूब, इब्राहिम, अल्लाह को तक नहीं सके। ए मेरे नबी, तुम्हें तकने का मौका मिल रहा है, तुम्हें बात करने का मौका मिल रहा है, तुम्हें खड़े रहने का मौका मिल रहा है, तुम एक दूसरे को तक रहे हो और तुम बोलते मुझे जाना है। मेरा आका है ये, मेरा आका रहमतल लिल आलमीन है, मेरा मौला रहमतल लिल आलमीन। मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मौला मुझे जाना होगा, सुबह हो गई ना, बिलाल ढूंढेगा, अबू बकर ढूंढेगा, उमर ढूंढेगा, उस्मान ढूंढेगा, अली का तो दीन ही नहीं जाता। मौला तू भेज, मेरी उम्मत मेरे इंतजार में है, अल्लाह के दीदार में। नबी खड़े हैं, ईसा बोलता है, मूसा बोलता है, मुझे दिखा, अलम तरानी नहीं देख सका। जिसको देखने का मिला कहता मौला नहीं देखना चाहता, उम्मत पास जाता हूँ। कैसा आका मिला यार, कैसा नबी मिला मेरे भाई, देख कैसा मिला। जब नबी आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को याद करा। याद करने के बाद नमाजें भी लाया हूं। कितनी थी भाई? मैं तो 50 ही ला रहा था। कितनी? अल्लाह ने मुझे 50 लेकर आ रहा था।
जबकि नबी सब जानते हैं और अल्लाह भी जानता है और मूसा भी जानते हैं। तो मूसा अलैहि सलाम वसीला बने, 5-5 कम कर आई, आलिम खलास, आलिम खलास। आलिम क्या बोलेगा? मूसा अलैहि सलाम ने 5-5 करके नमाजें कम कराई और नबी 5-5 कम करा के आते रहे, 5-5 कम करा कर आते रहे। तो 9 मरतबा गए, 45 कम हो गई, 5 लेकर आए, नमाज खलास, नमाज लेकर आ गए, मेराज हो गई। अरे नहीं रे भाई, ऐसी बात नहीं है। तो बराबर फिर गौर कर, बुराक साथ में, जिब्रील साथ में है, बुराक पे बैठे, जिब्रील पे बैठे, रफ पे बैठे, जिब्रील बुराक रफ ये लेकर जाती है छोटे आसमान से 5वां 7वां 7वें से भी काबा कोसेन, कोसेन से लामका अदना तक, वहां तक उड़ती जाती है। 3 सवारियां में से एक करके अपनी रेंज के मुताबिक लाका मका पे रुक गई। फिर वहां से नबी गए और जहां तक नबी को लामका की जगह से लेके 6ठे आसमान पे मूसा खड़े हैं। कितने? 6ठे आसमान पे मूसा और लामका पे रब, उससे आगे रब। अब 6ठे आसमान के बाद 7वां आसमान, 7वां आसमान के बाद काबा कोसेन, काबा कोसेन के बाद लामका अदना, ऐसे सब स्टॉप है जो आसमान से भी ज्यादा एक दूसरे को गेब है। तो यहाँ पे 6ठे आसमान पे या 5वें आसमान पे मूसा खड़े हैं और नबी को कहते 5 कम कराओ, फिर आए, फिर 5 कम कराओ, फिर आए, फिर 5 कम कराओ, फिर आए, फिर कहते हैं कि जिब्रील लेकर गया, फिर कहते बुराक लेकर गई, फिर कहते रफ लेकर गया। अरे रफ लेकर गया था एक मर्तबा, वो खिदमत का मौका दिया जिब्रील को, जिब्रील खादिम बुराक को मार्को पे मेराज, सिर्फ मौका दिया। जिब्रील को पैर रखा बुलंद, जिब्रील बुराक पे पैर रखा बुलंद, बुराक रफ पे पैर रखा बुलंद। मेरे नबी को किसी के जाने के रब के पास के वसीले की जरूरत नहीं, दावा ठोकता हूँ, कोई वसीले की जरूरत नहीं, ना रफ की जरूरत पड़ती, ना जिब्रील की जरूरत पड़ती, किसी की जरूरत नहीं। और किसी की जरूरत नहीं तो खिदमत में थे ये लोग, तो खिदमत में चले, बुराक पे घूमे फिरे। लेकिन ऐसा वक्त भी आया कि जिब्रील एक मर्तबा लेकर गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें 6ठे आसमान से लेके रब की मुलाकात के लिए 9 मर्तबा बिगर वसीले के एक ले गए। ना जिब्रील था, ना बुराक थी, ना कोई और था, मेरा नबी खुद गया, खुद आया। और किसकी रेंज थी? अरे बुराक पे थी तो 500 बरस की थी, ये नबी की रेंज थी, पल में गया, पल में। मेराज सिर्फ बुराक बहाना, मेरा जिब्रील एक बहाना। अरे मेरा नबी जब चाहे जब रब को देख सकता है। खुद मेराज के अंदर कबूल किया रब कि देखो मैंने मूसा को खड़ा रखा और मूसा को बोला मूसा मेरा नबी आए तो तेरी दुआ मांगे कबूल हो। जो 9 मरतबा तूने फरमाई थी मुझसे दुआ अल्लाह दीदार दे, तो मैं तुझे खड़ा करूंगा, जा आज मेरा दीदार देख नबी की आंख में, इल्म ऐन आंख में देख। जब नबी जाते फिर देख क्या आते, फिर आंखों में तकता, मूसा चेहरा तकता ही रहता, फतू वाले वो जुल्फो ले रहा था, वो साफा बांधा, वो चट्टा एकदम गुलाबी रंग का, क्या देख रहा है? अरे मोहम्मद का चेहरा तो दिख रहा है, साथ में तस्वीर कमाल मोहम्मद। वसीले बिगर मेरा नबी गया 9 मरतबा। यहाँ ना जिब्रील था ना कोई था। पूछे तो सिकरी कि जिब्रील तू वसीला बना नबी का जाने का कि नबी तेरा बने? तो जिब्रील खुद पूछता है कि मैं तो खादिम था। खुद नबी ने पूछा जिब्रील मैं जा रहा हूँ रब के पास, कुछ मांगता है तो मांग ले, कुछ मांगता है तो मांग लो। अब जिब्रील को क्या जरूर, जिब्रील को क्या जरूर, जन्नती है, जन्नत में रहने वाला है, जन्नत के आसपास रहने वाला है, उसको कोई जन्नम की तोल बोल का टेंशन नहीं है, तो क्या मांगा? तो क्या फरमाता खबर? ए नबी अल्लाह से मेरे लिए इतना मांगना। बात क्या है, क्या मांगा वो मत देखो, क्या बोला? या रसूलल्लाह अल्लाह के पास जाओ
जा रहे हो तो मेरे लिए इतना मांगना, नबी मांगे तो मिले, जिब्रील तू क्यों नहीं मांगता? सही बिल्कुल डायरेक्ट तू मांग रहे नहीं, तो ये अल्लाह ने जिब्रील के जरिए बताया, ये लोगों मांगना भी हो ना तो मैं बाजू में हूँ, मेरे घर में मत मांगना। अबे काबे में खड़े रह के भी नबी का वसीला तो जिब्रील भी मेरे नबी के दर से मांगता है और कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हो तो अल्लाह से एक चीज मांगना, क्या कि तुम्हारी उम्मत पुलसिसार से गुजरे तो मैं उस पर बिछा दूं कि तुम्हारी उम्मत को खबर ना पड़े। ये नबी के साथ रहने वाले, और उनको पता है जिब्रील को भी कि मेरा नबी सबसे ज्यादा मोहब्बत उम्मत मोहम्मद जैसे करता है, उसकी उम्मत से करता है, सब जानता है, जिब्रील भी जानता है। तो जिब्रील ने भी मांगा मोहम्मद से, नबी ने रब से मांगा उम्मत के। हर जगह मेरा को घुमा कर देख ले कोई भी एंगल से, तो वाहिद अल्लाह की शान बड़ी, अल्लाह की तौहीद बड़ी, नबी रिसालत बुलंद और उम्मत मुस्तफा की बनाई, क्या आई? बनाई। ये नबी करीम ने पूरा वाक्य को आपने पेश किया शाहबा के सामने, और शाहबा के सामने जब पेश किया तो उसमें इतलाफ हुआ। क्या हुआ? इतलाफ हुआ और फरमाया कि कैसे हो सकता है, ये बयान पूरा मेराज का करने के बाद इतलाफ हुआ कि कैसे हो सकता है कोई इंसान यहाँ नहीं जा सकता, सरकार का वजू का पानी भी वहां रहा, बस्तर भी गर्म हुआ, मेहानी के घर की कुंडी की साखल भी हलती रही, सरकार मेराज जाकर भी आ गए, मेराज जाकर भी आ गए। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? अरे कैसे, क्यों, कब मत बोल, कुफार हो जाएगा। कैसे, कब, क्यों मत बोल, कुफार हो जाएगा, क्योंकि ये रब है, कुन फयाकुन, हो जाता है। जब अल्लाह चाहे वो हो जाता है। जब अल्लाह 6 दिन के अंदर पूरे जमीन और आसमान को बना सकता है, 6 दिन में जमीन और आसमान बनाया, उसकी मखलूकात को बना के दिया, फरिश्तों को पैदा करके रख दिया, वो क्या नहीं कर सकता? क्योंकि मेराज की रात ले जाने की जात खुद अल्लाह की थी, तो जिम्मेदारी रब की है। महबूब तू बयान कर दे, ये माने तो ठीक, ना माने ठीक, ये ना माने कि मेराज गलत है तो तुझे ना झुटलाया, इन्होंने रब को झुटलाया, लेके रब गया, रब लेकर गया था। और रब ने कुरान में फरमाया महबूब कहदब मान ले, कुरान में दे रखा है, अगर कुरान की आयत को नहीं मानता वो कुफ्फार हो गया, वो मुनकिर हो गया, वो मुनाफिक हो गया। और मेरे भाई जो गुलाम मुस्तफा होता है ना, वो दलीलें नहीं मांगता, गुलाम मुस्तफा होता है, गुलाम पंजतन होता है, गुलाम गोस और खाजा हो जाता है ना, गुलाम अहमद रजा खां जैसा, तो वो दलीलें नहीं मांगता। वो कहता है कि हमने सुना है कि एक मुनकिर था जो अबू बकर के पास आ गया और फरमान लगा, अबू बकर तुम जिस पे ईमान लाते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि मैं अल्लाह के दीदार आसमान पर करके आया, उसके पहले मस्जिद हरम में भी गया, मस्जिद अक्सा में भी गया, ये ऐसा हो सकता है? तो उस मुनकिर को पूछा अबू जहल ने, क्या तूने अपने कानों से सुना कि मोहम्मद ने कहा है? बोला हाँ मैंने अपने कानों से सुना। तो हाँ हकीकत मेरा नबी मेराज गया। जो नबी की तारीफ दुश्मनों से भी राजी हो जाए वो मोमिन है। और किसी मोमिन को पहचानने के लिए अगर नबी की तारीफ करे और खुशी ना मनाए, उसका दिल मचलाए नहीं, उसका नारा ना लगे या उसके बदन में तनतनी ना आए, तो सोच देना कि मुनकिर है, सिर्फ टोपी दाढ़ी बनकर बैठा है, लेकिन नबी की बातों को काटने के लिए बैठा है, मुल्ला बनकर बैठा है, फतवे देने के लिए बैठा है, नबी से इश्क कराने के लिए नहीं बैठा है। नबी से इश्क कराने के लिए होता तो फतवे ना निकालता, उम्मत मुस्तफा को इश्क रसूल में बढ़ाता, आशिक रसूल में बढ़ाता और कहता यकीनन ये हदीस मौजूद है कि अबू जहल अबू लहब के मुंह से सुनी अबू बकर सिद्दीक ने, और नबी करीम ने फरमाया आज से तुम सिद्दीक हो गए कि तुमने तुम्हारे नबी के मुंह से भी ना सुना, तक के भी ना सुना, तुमने तका भी किसी और को, सुना भी किसी और से, और तुमने ईमान रख दिया। तो बस आज मेरा हाल
तुम्हारा मेरा बेटा हाल यही है कि हमने अल्लाह को नहीं देखा, नबी को नहीं देखा, साहबा को नहीं देखा, अली को नहीं देखा, गोश्त को नहीं देखा, खाजा को नहीं देखा। ईमान है कि कयामत के दिन भी हमारी सफाई के अंदर मदद करेंगे। हमारा ईमान है। दुनिया में वसीला मांगते हैं, मदद करते हैं, कयामत के दिन भी मदद करेंगे। वाहिद नमाज को कायम कर, नमाज को मत रहो। जब अल्लाह कोई तुझे परेशानी मुसीबत में डाले तो ये ना बहुत मैं परेशान हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत बीमार हूँ, नहीं। अल्लाह सच्चों का इम्तिहान लेता है, बिल्कुल बच्चों का इम्तिहान लेता है। जिसको मोमिन बनाने का होता है उसका इम्तिहान लेता है, जिसको नेक बनाने का होता है उसको भूखा रखता है। ये अल्लाह की मर्जी है। क्योंकि नबी ने फरमाया कि जो नबी को चाहे, जो नबी से मोहब्बत करता है, सहाबा ने फरमाया रसूल अल्लाह मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप पे जान देता हूँ, तो तैयार हो जाओ। साहबा ने बोला किस बात से? कि तुम्हारा इम्तिहान चालू होगा। सही नबी से मोहब्बत करना इम्तिहान है दुनिया, और फिर दुनिया, ये दुनिया इम्तिहान है, सफर है। मेराज की रात जो गुजरी वो कुरान के मुताबिक अल्लाह अब्जल नबी कौनैन के साथ में था, और इसके इतने वाक़या थे कि आज तो कोई पूरे नहीं कर सका। में से जो बना आज तक पहुंचाया, आप सब जानते हो। वो मालेना इन्नर बना सल्लल्लाहु अलैहि हबीब।